السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ جاری ہے، آپ حضرات اپنے عبادت میں مشغول بھی ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ، جو عبادت ہم اس ماہ رمضان میں کرتے ہیں یا جس طریقے سے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، باقی بھی 11 مہینے اللہ تعالی ہمیں اسی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جب جنگ کی اجازت دے دی، تو جنگ کی اجازت ملی جا کر مکہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں۔ مکہ میں آپ علیہ السلام 13 سال تک رہیں، صحابہ کرام بھی رہیں۔ کفار مکہ آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کو ہر طریقے سے تنگ کرنا شروع کر دیا، تنگ کیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جنگ کی بات نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام جنگ کر سکتے تھے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی پرمیشن نہیں آیا تھا۔ تو جب صحابہ کرام ہجرت کر کے جب مدینے چلے گئے، تب آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں جنگ کرنے کی اجازت ہے، اب ان سے جنگ بھی لو، جنگ بھی کرو اور ان کو خوب مارو بھی، اور اپنے گھر بھی ان سے واپس لے لو۔ تو سب سے پہلے جو مسلمانوں کا جو جنگ ہوئی وہ غزوہ بدر، سمجھ میں آ گئی؟ غزوہ بدر۔ اب غزوہ کسے کہتے ہیں اور سرایہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام بنفس نفیس خود شامل ہوئے ہوں، اور سرایہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں آپ علیہ السلام نے کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجا ہو۔ تو یہ کچھ فرق ہیں۔ تو غزوہ بدر 17 رمضان مبارک کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا اور یہ جنگ کی نوبت کیوں آئی، اس کے بارے میں واقعہ پڑھ لیتے ہیں۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینے میں آ گئے، تو مکہ کے جو کفار تھے ان سے یہ رہا نہیں گیا کہ مسلمان کہیں پہ بھی امن و سکون کے ساتھ رہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مدینے کے گرد و جوار میں جتنے علاقے تھے تو ان سے کبھی کسی کے مال مویشی لے لی، کبھی کسی کو قتل کر دیا۔ تو اس حالت میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اب جنگ کر کے ان سے بدلہ لے لو۔ تو سب سے جنگ کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ ایک شخص تھا، عمر بن حضرمی ایک نامی شخص تھا، جو کفار کی طرف سے تھا اور بہت بڑا تجارتی بندہ تھا۔ یعنی جو وہ کسی کام سے تجارت کے حوالے سے کہیں جا رہا تھا ملک شام کی طرف، تو مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور اس کو مار دیا۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ جھڑپ کر کے اس میں وہ مارا گیا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ جنگ کا آغاز اس صورت میں ہوا۔ دوسرا یہ کہ جب 17 رمضان مبارک تھی، 17 رمضان مبارک کو ابو سفیان، جو اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر آ رہا تھا، تقریباً 1000 کے قریب اونٹ تھے، اس میں وہ تجارتی سامان لے کر مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ موقع ہے جا کر ان سے بدلہ لینے کا۔ تو جیسے ہی ابو سفیان کے راستے میں وہ آ رہے تھے مسلمان، تو ابو سفیان کو پتہ چل گیا۔ ابو سفیان نے اپنے کوئی کارندے بھیجے کہ ہم سے پہلے اب بھاگ کر جاؤ مکہ میں، اور ابو جہل کو بتاؤ کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا اور ان سے سارا مال لوٹ لیا، تو آپ اپنے بندے لے کر آ جاؤ۔ تو جیسے ہی وہ بندہ گیا، وہاں سے ابو جہل تقریباً 1000 لشکر کو وہ لے کر وہاں سے روانہ ہوا۔ جیسے ہی روانہ ہوا تو ابو سفیان تو بہت بڑا آپ یہ سمجھے کہ تجارتی بندہ بھی تھا، اور اس کو ساری چیزوں کا پتہ تھا۔ اس نے راستہ بدل دیا اور قافلے کو بالکل ہی یعنی امن کے ساتھ وہ لے کر پہنچ گیا مکہ مکرمہ۔ ابو سفیان نے پھر ابو جہل کو کہا بھی کہ واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اب میں واپس آنے والا نہیں ہوں، اب یہ جنگ ہو کے رہے گی جو غزوہ بدر کا سب سے پہلی جنگ ہوئی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور مند مقابل جو کفار تھے وہ 1000 کے قریب تھے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ان کے پاس کیا تھا؟ مسلمان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 313 صحابہ کرام میں سے 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 تلواریں تھیں 313 لوگوں میں۔ ذرا آپ اس چیز کو ذرا غور کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 313 لوگوں کے لیے 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 تلواریں۔ تو 6 تلواریں، آپ ذرا یہ مجھے بتا دیں کہ 6 تلواروں میں سے کون کون بندے لڑے گا، پھر کون کون بندے اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں گے۔ تو یہ تھی ایمانی جذبہ، ایمانی غیرت جو ان صحابہ کرام میں موجود تھی۔ اب جنگ کا جب آغاز ہونے لگا،
यानी इस साइड पे सहाबाए कराम थे, दूसरे साइड पर कुफार मक्का। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबाए कराम को उस वक़्त तक आगे जाने की इजाज़त नहीं थी जब तक वो कुफार मक्का ख़ुद वहाँ तक से नहीं आए। उनका तरीक़ाकार ये था कि 3 बंदे वहाँ से निकल आए, 3 बंदे यहाँ से निकल आए, इनके आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद मुसलमानों ने उन 3 बंदों को मारा, फिर जाकर आपस में लड़ाई हो गई और आपस में लड़ने के बाद अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की जो जमात थी सहाबाए कराम, अल्लाह ताला ने उनको फतह दे दी। और उसी जंग में अबू जहल जो था, जो उनका सरदार था, वो भी मर गया। किन के हाथों से? हज़रत मुआज़ और हज़रत मुअव्वज़, ये 2 भाई थे। 2 भाई थे। एक सहाबी फरमाते हैं कि जंग के दौरान ये 2 भाई आए, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और कहते हैं मुझे हिलाया, मुझे कहा कि चाचू अबू जहल कहाँ पे है? तो मैंने कहा कि अबू जहल को क्या करोगे? कहते नहीं, हमने सुना है, वो बच्चे खुद कहते हैं कि हमने सुना है कि वो नबी अलैहिस्सलाम को गालियाँ देता है। तो सहाबी ने फरमाया कि जी बिल्कुल गालियाँ देता है। तो जैसे ही उस सहाबी की नज़र अबू जहल पर पड़ी, यानी जंग में थे, तो वो सहाबी फरमाते कि मैंने इशारा करके बताया कि वो वहाँ पर है, यानी हाथ के इशारे के साथ बताया। वो सहाबी खुद फरमाते हैं कि मेरे हाथ के इशारा करना था कि दोनों भाई यहाँ से निकल पड़े। जैसे निकले, अबू जहल को एक ने क्या किया कि घोड़े के टांग पर वार की, जिसकी वजह से वो गिर गया, और दूसरा जो भाई था उसने जाकर वार किया। वार करने के बाद वो जैसे नीचे गिर गया, इतने में वो सहाबी रसूल भी पहुंच गए। उन्होंने जैसे देखा कि अबू जहल नीचे हैं और सही हालत में है, उसी वक्त उसको उधर ही जहन्नम वासिल कर दिया। तो ये थे हज़रत सहाबाए कराम और उनका हौसला। एक सहाबी के बारे में आते हैं कि हज़रत औफ बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने ज़िरा पहनी हुई थी। तो जब उन्होंने देखा कि ज़िरा पहनी हुई है, उन्होंने फ़ौरन से पहले ज़िरा निकाल दी और बिजली की तरह गए उन कुफ़ार मक्का के झमघटे में जैसे ही गुजरे, यानी लड़ाई जारी थी, लड़ते रहे यहाँ तक कि वो शहीद हो गए। तो ये थे सहाबाए कराम। आज भी हमारा रोज़ा होता है, थोड़ा सा काम करते नहीं है, फिर कहते हैं हमें रोज़ा लग गया, थोड़ी सी गर्मी तेज़ होती नहीं है, फिर हमें कहते हैं हमें रोज़ा लग गया। तो ये सहाबाए कराम थे। सबसे पहली लड़ाई जो हुई ग़ज़वे बदर 17 रमज़ान मुबारक को सहाबाए कराम का रोज़ा था, नऊज़ुबिल्लाह कोई कोजा नहीं था, सहाबाए कराम रोज़े की हालत में लड़ रहे थे। तो ये होता है ईमानी जज्बा, ईमानी गैरत। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आते हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने एक काफिर को देखा जिसने पूरा का पूरा ज़िर्रा पहना हुआ था, यानी सर से लेकर पाँव तक। ज़िर्रा होता है कि जो आदमी अगर तलवार से मारे ना, तो वो उमूमन उस बंदे को नहीं लगती, वो ज़िर्रे से वो उससे बचाव हो जाता है। तो वो सहाबी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक बंदा आया, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मैंने देखा एक बंदा आया, वो पूरा का पूरा ढका हुआ था ज़िर्रे में। तो मैंने उसकी आंख की तरफ नज़र आ रही थी। वो फरमाते हैं कि मैं जैसी गया, मैंने उसकी आंख में जैसी तलवार मारी, उसकी वजह से वो बंदा गिर गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आते हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने अपने मामू को देखा, यानी कुफर की हालत में वो थे, मैंने अपने मामू को देखा कि वो कुफर की हालत में लड़ रहे थे, तो मैंने भी जाकर उन पर वार किया और उसको उधर ही जहन्नम वासिल कर दिया। तो ये थे सहाबाए कराम, ये थे उनका जज्बा, जो आजकल के अल्लाह माफ़ करे हम मुसलमानों में कम हो गया, बल्कि कम क्या, मैं तो कहता हूँ कि ना होने के बराबर है। समझ में आ रही है ना? तो ये ग़ज़वे बदर के फिर नताइज क्या हुए, इनका रिज़ल्ट क्या हुआ? कि नताइज ये हुए कि अल्लाह ताला ने मदद के लिए ऊपर से फ़रिश्ते नाजिल किए। फ़रिश्ते इस हैसियत से नाजिल किए कि फ़रिश्ते आए कुफ़ार की तरफ से, और कुफ़ार की तरफ से जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे थे कि ए अल्लाह, मेरे जमा पूंजी है, सहाबाए कराम की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये 313 है, मैंने इनको तैयार किया, ए अल्लाह तू इनको फ़तह याब फरमा, यानी इस तरह की दुआएं फरमाई। तो इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों के साथ वो ले आए, और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ में तलवार, सर पे अमामा, ब्लैक कलर का अमामा बांधा हुआ था, और कुफ़ार मक्का की तरफ से वो जैसे आए, यानी वो तो नज़र तो नहीं आती ना, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को नज़र आए। जैसे वो वहाँ से आए, इस साइड पे खड़े हो गए। अब कुफ़ार ने तो उनकी आवाज़ तो सुनी, कुफ़ार ने कहा कि यार ये मुसलमानों ने हो सकता है पीछे से वार किया हो। हालांकि वो पीछे से नहीं था, बल्कि उनकी तरफ से आए फ़रिश्ते, और मुसलमानों के सफ़ में खड़े हो गए, और फिर मुसलमानों की तरफ से उन फ़रिश्तों ने भी मुकाबला किया। और उन फ़रिश्तों का काम क्या था, क्योंकि फ़रिश्ते तो ना खा सकते, ना पी सकते, ना जान सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा ये काम है कि तुमने काफिर को गर्दनों पे मारना है, यानी इस गर्दन पे। तो फरिश्ते क्या करते, कुफार मक्का को गर्दनों पे मारते थे। तो जैसे ही जंग ख़त्म हुई, जंग ख़त्म होने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग का, यानी जंग बदर का मुहासरा किया।
जंग बदर का एक किस्म का आप ये कहते हैं कि विज़िट किया, विज़िट करने के बाद वहाँ पर देखा तो जिस जिस काफिर के यहाँ पर निशान पड़ गया था, जिस काफिर के यहाँ पर निशान था, तो इससे पता चल जाता कि वो वार किसी फरिश्ते ने की है। समझ में आई ना, यानी फरिश्तों ने भी मुकाबला किया और उन कुफार को मारा। तो उस मार्के में फिर दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये हुई कि कुरैश मक्का के 70 आदमी मारे गए, जिसमें अबू जहल समेत कुफार के 11 सरदार, बड़े बड़े सरदार मारे गए। समझ में आ गई। और मुसलमानों की तरफ से सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हो गए। मुसलमानों की तरफ से 14 मुसलमान शहीद हो गए और कुफार की तरफ से 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए, जिनमें अबू जहल भी था और 11 और लोग भी थे। समझ में आ गई। और ग़ज़वे बदर में दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि उसमें 70 आदमी कैदी भी हो गए, बाज़ों को छोड़ दिया गया। समझ में आई ना, यानी उन्होंने फ़िदया दिया, पैसे दिए, उन्होंने उनको छोड़ दिया मुसलमानों ने। और बाज़ों को कहा कि आपने जाकर मुसलमान बच्चों को कुछ तालीम देनी है, यानी उनको कुछ सिखाना है, सीखने सिखाने का, यानी उनको कुछ लिखाना पढ़ाना है। यानी मुसलमान तो कुछ नहीं जानते थे, कुफार जानते थे, तो इस वजह से बाज़ों को कहा कि आप अगर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे तब हम आपको जाने की इजाज़त देंगे। तो उन कुफार ने इसी तरह किया, बाज़ों ने आकर आए और मुसलमानों को पढ़ाया लिखाया, फिर जाकर वो कुछ सीख सकें। समझ में आ गई। फिर ग़ज़वे बदर के बाद ग़ज़वे बदर से जो कामयाबी के बाद इस्लाम फिर उसके बाद ज़ोर व शोर से फैलने लग गया, फिर जाकर इस्लाम की इशाअत हो गई। तो ये थे सहाबाए कराम, ये थे उनके अहवाल। जो सबसे पहली मुसलमानों की जंग हुई, जंग बदर, वो भी 17 रमज़ान मुबारक को सहाबाए कराम रोज़े की हालत में जंग के लिए गए, नबी अलैहिस्सलाम के एक ही इशारे पर। आजकल हम, अल्लाह माफ़ करे, हमें रोज़ा लग जाता है, हम मस्जिद भी नहीं जा सकते। पूछो क्यों? भाई रोज़ा लगा हुआ है, रोज़ा लगा हुआ है। आजकल के इस दौर में तो रोज़े रखना तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। जून जुलाई जो गुज़रा है उसमें जो रोज़े रखे, तब आदमी को पता चलता है कि वो रोज़े कैसे गुजरे हैं। बहरहाल ग़ज़वे बदर 17 रमज़ान मुबारक को हुआ, तो ये तारीख़ याद रखनी चाहिए। ये इस्लाम की जो बहुत बड़ी बड़ी जो जंगी हुई, उनमें सबसे पहली जंग ये हुई जिसमें सहाबाए कराम को अल्लाह ताला ने फ़तह भी अता फ़रमाई। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।